Now let me discuss here area under the peak or peak area. Now peak area is nothing but the area under the peak is responsible for the number of protons in that signal. Previously it was represented by integration height or on graph paper. Means you measure the number of squares under the peak, then you will get area under that peak. Then it is represented by integration height. Now this integration height is represented by digitally below this peak. Now let us consider for discussing this topic, that is area under the peak. For example, NMR of para tertiary butyl toluene. Here is a structure, that is CH3 single bond C6H4 C CH3 by 3. This molecule gives 3 signals. 1, because all these CH3s are equivalent, therefore first signal. Second signal for aromatic compounds, aromatic protons, and third signal for CH3. Now here these protons are highly shielded, therefore value near about 1 point something. Now here CH3 group is directly attached to benzene ring, therefore the value is slightly higher as compared to these 3 CH3 groups, that is around 2 point something, that is 2.3. And you know the range of aromatic compounds. Aromatic compounds absorb between the 7 to 8 or even higher than 8, means near about the 7. Now look here, the area under this peak is maximum and integration height represented by 8.8. Similarly, this peak corresponds to CH3 group, that is CH3 group or B type protons. This is for A type protons, B type protons, and integration height for B type protons, that is 2.9, and for aromatic protons means C type protons, here integration height is 3.8. Now from the given height, how can you calculate the number of protons in this signal? यानी हाइट देने के बाद, मान लो हाइट दी है तो उससे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये सिग्नल के अंदर कितने हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स. तो हमें प्रोटॉन काउंट करना है. अभी ये नॉन एग्जाम्पल है, इसलिए आपको मालूम है कि ए के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 9 प्रोटॉन. बी में कितने हैं सिग्नल में, 3 प्रोटॉन्स, और सी में कितने हैं, 4 प्रोटॉन्स. ये अभी एग्जाम्पल दिख रहा है इसलिए मालूम है, मगर बहुत सारी इसमें क्या करते हैं कि हाइट देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट सिग्नल नहीं देते हैं. तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन हाइट. नाउ हियर इंटीग्रेशन हाइट इज गिवन. सो फर्स्ट method, that is proton counting. This first method based on ratio of step height. Now you write the ratio of all these 3 signals, means how many signals are present in your compound, you write the ratio, and here only 3 signals are there, therefore A is to B is to C. Now height corresponds to A signal, that is 8.8, corresponds to B 2.9 and C 3.8. Now consider the smallest height, and between these 3 smallest height is 2.9. So divide each height by smallest number. Now 8.8 divided by 2.9, that comes out to be 3. 2.9 divided by 2.9, that is 1. 3.8 divided by 2.9 is equals to 1.3. But look here, here you will get the whole number, here again you will get whole number, but this figure is not a whole number.
Therefore, you multiply with suitable number so that you will get the whole number. Now 3, suppose if you multiply by 3 to 1.3, that comes out to be near about 9. So you multiply with suitable number means 3, multiply 3 by 3, 1 multiply by 3, again 1.3 multiply by 1.3 multiply by, that is 3, that is 3. Now 3 multiply by 3, it is 9, 1 multiply by 3, that is 9, and 1.9 multiply by 3, that is comes out to be 3.9, and this figure is exactly closer to the whole number, that is 4. So first peak means A peak corresponds to how many protons? 9 protons. Peak B corresponds to how many protons? 3 protons. And peak C corresponds to how many protons? 4 protons. तो ये क्या बताता है कि एक A सिग्नल में कितने प्रोटॉन हैं, B सिग्नल में कितने प्रोटॉन हैं और C सिग्नल में कितने प्रोटॉन हैं. ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन काउंटिंग मेथड और बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ स्टेप हाइट्स. दूसरी मेथड और भी आसान है. यदि आपको फार्मूला नोन है, इफ फार्मूला इज गिवन, इफ फार्मूला इज नोन टू यू, देन you can easily calculate the number of protons in each signal with the help of second method. तो हमें अभी फार्मूला मालूम है. फार्मूला क्या है? C11H16. इसका फार्मूला है C11H16. तो हम क्या करेंगे? काउंट द टोटल इंटीग्रेशन हाइट ऑफ ऑल द सिग्नल. जितने भी आपको सिग्नल दिए हैं उन सब की एडिशन कीजिएगा. दैट इज 8.8 प्लस 2.9 प्लस 3.8. तो कितना आ गया? ये आ गया 15.5. अभी हमारे इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 16 प्रोटॉन. तो कैलकुलेट पर यूनिट हाइड्रोजन, यानी एक प्रोटॉन के साथ कितनी हाइट होगी. दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल इंटीग्रेशन हाइट ऑफ ऑल द सिग्नल्स. यानी जितने प्रोटॉन है वो ऊपर लिखो, उसको डिवाइड करो टोटल हाइट से. तो एक प्रोटॉन की हाइट कितनी रहेगी? दैट इज 1.03 आ गई है यहाँ पे. तो 1 प्रोटॉन मीन्स हाउ मच हाइट? दैट इज 1.03 mm हाइट और सेंटीमीटर जो भी दिया है, सॉरी मिलीमीटर हाइट 1.03. तो अभी ये सिग्नल के अंदर एक प्रोटॉन की हाइट कितनी है? 1.03. तो 8.8 में कितने प्रोटॉन बैठते हैं? दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन. A इज इक्वल्स टू 1.03 मल्टीप्लाई बाय टोटल हाइट ऑफ ए सिग्नल इज इक्वल्स टू 9.1. और ये 9.1 एग्जैक्टली इज इक्वल टू क्या होता है? नियर अबाउट, दैट इज 9. यानी ये सिग्नल के अंदर फिर से 9 प्रोटॉन आ गए हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड मेथड. दूसरा क्या करेंगे? हम फिर से दूसरा सिग्नल लेंगे. तो दूसरे सिग्नल की हाइट है 2.9, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट हाइड्रोजन हाइट, दैट इज 1.03. तो ये आ गया 3. तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन. और लास्ट वाली क्या है? लास्ट वाला सिग्नल 1.03 मल्टीप्लाई बाय 3.8 इज इक्वल्स टू 3.9. और ये 3.9 इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 4. तो इसमें 4 प्रोटॉन हैं, इसमें 3 और इसमें 9. कोई भी मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो, आइदर बाय यूजिंग द रेशियो मेथड, बट दिस वन इज सिंपल मेथड इफ यू नो द फार्मूला. ठीक है. अभी हम देखते हैं एक एग्जाम्पल. और कोई भी आप एग्जाम्पल किताब में से ले लो. जैसे वायर शर्मा का जो किताब है, वो वायर शर्मा के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं और उसमें प्रोटॉन नहीं दिए हैं, हाइट दी है. तो उसमें से आप 2-4 एग्जाम्पल कैलकुलेट करके प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि हमें यह आगे काम में आने वाला है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हियर हाइट इज गिवन, दैट इज 90 mm, 36, 37, 54 mm हाइट दी है.
तो इसमें क्या करेंगे, फिर से लोवेस्ट से डिवाइड करेंगे और लोवेस्ट कितनी है 36, तो 36 से डिवाइड किया, इतना आ गया 2.5, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 1.5। तो इसमें कितने सिग्नल दिए हैं, 4 सिग्नल दिए हैं, 4 सिग्नल की हाइट हमने कैलकुलेट की है। नाउ लुक हियर, दीज आर नॉट द होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, मगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 5 बन जाएगा और इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 3, ठीक है, इसका बन जाएगा 3। नाउ मल्टीप्लाई विथ सुटेबल नंबर मीन्स दिस रेशियो मल्टीप्लाई विथ द हेल्प ऑफ 2, that is 2.5 multiplied by 2, 1.1 multiplied by 2, again 1 multiplied by 2 and 1.5 multiplied by 2। तो ये कितना आ गया 5:2:3:2:3। इसका मतलब 90 mm height corresponds to how many proton? 5 protons. Suppose if you label this as A, B, C and D, तो A में कितने प्रोटॉन्स है 5, B और 36 mm height corresponds to 2 proton